Hello everyone, welcome back to the channel Fly Guy, and thank you everybody for all of your love which you showered on my first video. I mean, every like matters, every comments of yours matter. So thank you everyone whoever gave me feedback on how to improve and everything. I read all of your comments and I appreciate each and every one of them. Now, let's talk about today's video. It's gonna be a special one because I'm going to talk about my journey as a cabin crew since I started till now. अच्छी रही है, काफ़ी अच्छी रही है, and it has been I would not say it was a dream for me, but it has been a dream life for me till now. Since I have joined aviation, सब कुछ काफ़ी अच्छा चला है तब से. So शुरू करते हैं कि मैंने सोचा कब that I want to become a cabin crew. Actually, I think I was 17 years old when I came across a friend who actually suggested me to become a cabin crew. तब तक तो मुझे पता भी नहीं था कि लड़के cabin crew बन भी सकते हैं. For me, cabin crew was just, I did not know the term cabin crew honestly. It was air hostess. Okay, so it was something जो लड़कियां ही बन सकती हैं and लड़के नहीं बन सकते. बट मेरे दोस्त ने मुझे बताया that yes, लड़के भी क्रू बन सकते हैं और ऐसा ऐसा होता है. I did not know anything about the job. When he told me about this job, I started researching about it. That what are the eligibility criterias, कैसे क्या होता है, how are the interviews and everything. I was just 17 years old, but still I did some research on my own on Google and found out that it's not that tough to crack. लेकिन जब इंटरव्यू देना शुरू किया तो पता चला that it is tough to crack. Okay, let's go back. Then I started researching about everything, preparing myself for everything, and that 1 year, I had 1 year because I completed my higher secondary education when I was 17. So I had that 1 year, spare 1 year when I was doing my graduation. Now I would have wasted it, or I would have joined anything productive, you know. तो मैंने सोचा कि किसी होटल में इंटर्नशिप कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि कस्टमर हैंडलिंग कैसे होती है. तो वही किया, काफ़ी होटल्स में इंटर्नशिप्स ढूंढी और एक जगह लकीली मिल गई. यहाँ से शुरू होती है मेरी एविएशन की जर्नी या कहिए कस्टमर सर्विस की जर्नी. अगर कोई यहाँ पे होटल बैकग्राउंड से होगा तो वो मुझसे रिलेट कर पाएगा कि जब आप होटल में ज्वाइन करते हो तो मेरी डेजिग्नेशन कुछ भी नहीं थी, बट आई वॉज अ फ्रंट ऑफिस स्टाफ. सो माई एक्चुअल वर्क वॉज टू डील विद द कस्टमर इंटरेक्शन. उसके लिए ही मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए एप्लीकेशन डाला था. बट वहाँ पहुँचा पहले दिन, इट वॉज़ वेरी नाइस, एवरीथिंग वॉज गुड. दूसरे दिन एक गेस्ट आए एंड माई मैनेजर टोल्ड मी कि इनका सामान ऊपर रखे हो. एंड आई वॉज शॉक्ड. आई वॉज लाइक, ये काम तो बेल बॉय का है, मैं यहाँ पे बेल बॉय की नौकरी करने थोड़ी आया हूँ. मतलब ऐसा होता है. आप सोचो, मैं उस टाइम पे आई वॉज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड, 17 एंड हाफ आई थिंक. तो मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था कि मैं यहाँ ये करने नहीं है. आई अप्रोच्ड माई मैनेजर. आई टोल्ड हिम दैट दिस इज़ नॉट द वर्क विच आई एम सपोज टू डू हियर. माई वर्क इज़ जस्ट कस्टमर इंटरेक्शन. दैट डे ही टोल्ड मी वन थिंग, और वो मुझे अभी तक याद है, कि बेटा हॉस्पिटैलिटी में यू हैव टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू मेक योर कस्टमर हैप्पी. Being a manager, I can lift his luggage and go to his room and put it there. I have no issues. So if you have any ego issues here, please put it aside before joining customer service industry. और वो मुझे आज तक याद है. The moment I wear my uniform, even today, I put my ego aside. And that's what my friends tell me, that whenever you are in uniform, you are a different person. And whenever you are socializing with us, you are a different person. Now let's go back there. तो होटल में सब ऐसा चलता रहा and then I turned 18. Then came my first interview, Jet Airways.
जेट एयरवेज का इंटरव्यू देने गया, फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, सेकंड राउंड में भी क्लियर हो गया किसी तरह से, थर्ड राउंड में दे टोल्ड मी दैट आई हैव अ स्कार एंड यस इट्स नॉट अ स्कार, इट्स अ बर्थ मार्क, और उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फेलियर्स शुरू से ही जब मुझे पसंद नहीं थे, मतलब फ्रॉम स्कूल ओनली आई वाज इन स्पोर्ट्स, तो फिर फेलियर्स को मैं लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता था, और यही हुआ। मैं एक बार रिजेक्ट हुआ और उसके बाद मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट फॉर मी। 1 महीना गया, 2 महीना गया, विस्तारा का इंटरव्यू आया। विस्तारा ने उस टाइम पे नए नए लड़के हायर करना शुरू किए थे, बिकॉज़ जब विस्तारा शुरू हुई थी तो वो सिर्फ फीमेल्स हायर करते थे, वो मेल हायर नहीं करते थे। विस्तारा का इंटरव्यू आया, मैं दिल्ली गया इंटरव्यू देने, आई गेव माई इंटरव्यू देयर, I cleared my first round, and second round they rejected me again because of the scar. I was shattered. I did not know what to do. मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि एक छोटा सा मार्क आपको कैसे रोक सकता है क्रू बनने से। बिल्कुल ये चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि ये चीज़ मुझे पानी है और ये इतना सा मार्क मुझे कैसे रोक लेगा। Then I came across someone who told me कि if your other qualities are nice and you are flawless, your soft skills are flawless, वो आपका स्कार नज़रअंदाज कर देंगे। और वो था एक चेंजिंग पॉइंट मेरी लाइफ में। और उसके बाद मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना शुरू कर दिया, अपने उठने बैठने के तरीके पे काम करना शुरू कर दिया, कैसे बात करते हैं, कैसे इंटरव्यूअर के सामने आंसर देते हैं, आई कांटेक्ट कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों पे काम शुरू किया एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट। विदिन 2 months आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर 1 more इंटरव्यू, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैं उस इंटरव्यू में गया था, आई वाज वेरी श्योर कि आई एम गोना मेक इट। बट उस टाइम पे लगातार 3 महीनों तक कोई भी इंटरव्यूज़ नहीं आए थे किसी भी एयरलाइन के। जेट एयरवेज का बुरा टाइम शुरू हो चुका था, विस्तारा बहुत कम हायर करता था। उसी टाइम पे एक गो एयर का इंटरव्यू आया, माई फर्स्ट लव, और मैं वो इंटरव्यू देने गया। द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आई वॉज इन, आई डिड नॉट इवन थिंक ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड दैट डे। इट इज़ नॉट माई ओवर कॉन्फिडेंस, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जब आप किसी चीज़ के लिए खुद को तैयार करते हो तो आपको कितना कॉन्फिडेंस आता है अंदर से। अगर आपको खुद में कॉन्फिडेंस रहेगा ना, तो वो आपके आंसर्स में दिखेगा, कैसे आप चलते हो उसमें दिखेगा, कैसे आप बात करते हो उसमें दिखेगा। तो ये थी मेरी स्टोरी। मुझे पता है इट वॉज नॉट वेरी फैसिनेटिंग, बिकॉज इसमें कुछ भी बनावटी नहीं है, जो है वो सच्चाई है। लोग आपको आके बोलेंगे हाँ मैंने ये स्ट्रगल किया, मैंने वो स्ट्रगल किया। स्ट्रगल सब करते हैं, बट इट्स जस्ट द वे हाउ यू टेक इट। हाँ, मेरा बहुत कम था, बिकॉज आई गॉट एवरीथिंग, मतलब एज के साथ मुझे सब कुछ मिलता गया। तो आई देन जॉइन गो एयर एंड आई वर्क देयर फॉर लाइक 3.5 years। बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी गलतियाँ की, बहुत सारी डांट खाई, लेकिन बहुत सारा अच्छा काम भी किया। और फिर धीरे धीरे जब मैंने गोयर शुरू किया था, जब मैंने गोयर में काम करना शुरू किया था, तभी मैंने अपना पेज भी शुरू किया था, क्रू इंटरव्यू असिस्टेंट्स। और उसके बाद धीरे धीरे एविएशन के बारे में रिसर्च करता गया, सारी चीज़ें सीखता गया, एंड नाउ हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू शेयरिंग माई story. I mean, it's just amazing how time flies, and I had never thought कि कभी मेरे 50,000 या 60,000 या 70,000 फॉलोअर हो पाएंगे इंस्टाग्राम पे, बट हुए। तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। जस्ट फॉर योर नॉलेज, अब मैं गोयर के साथ काम नहीं करता हूँ। आई एम वर्किंग विद अ डिफरेंट एयरलाइन एंड इट्स गोइंग गुड, इट्स गोइंग वेरी 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 गुड, एंड आई एम थैंकफुल फॉर each and every moment when I did hard work to achieve this, because today I can say that I am stable financially, professionally, and it's going amazing. So if you want to achieve something in life, you should put your ego apart. Always remember, अगर आप
छोटी छोटी चीज़ों से आपको बुरा लगता है या किसी की बात आपको बुरी लग जाती है, आप हर बात पे आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हो, तो कैबिन क्रू जॉब थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है. बट एज आई सेड, विद टाइम एवरीबडी ग्रोज. So this was my story, not so fascinating, but this was all of it. I mean, if you liked it, good. If you have something to learn from it, it's good for you. With this, I think this video has gone too long. I'm gonna end this video and I will come back with one more video on how you should perform on your interview day. I mean, how you should be on your interview day. How should you behave? What should you wear? And how should you walk? How should you talk? How should you smile? Everything. So stay tuned for that. And thank you so much for watching till now. If you want to subscribe, please subscribe कर देना, like कर देना, share कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो पे. और हाँ, क्रिटिसिज्म ज़रूर करना ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं कहाँ पे क्या गलतियाँ कर रहा हूँ. नहीं हो रहा है. So in the race of becoming a cabin crew, I became Siddiqui English. Stop.